Hello, everybody. Welcome back to Vinny Ki Dunya. Hope all of you are doing great. My days start with waking up early in the morning. During normal days, I usually wake up by 5 a.m. in the morning. But during holidays, I take leverage and wake up by 6:30 in the morning. I start my day as usual by drinking 2 glasses of warm water in Malasana. After drinking my water, I go to get freshen up, and after that I do little bit of stretching, yoga and meditation. ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मल डेज में भी करती हूँ, बट टाइम थोड़ा पहले हो जाता है. After finishing all my thing, the first thing in the morning I do is preparing my tea. जी हाँ, आप सभी लोगों को पता है कि हमें सुबह चाय पीने की कितनी आदत है. So by the time I prepare my tea, even Saurabh also get freshen up, and both of us sit and enjoy our own time. We talk lots of things. During this time, we share all our philosophical thoughts. According to us, what is right, what is wrong, what should we do next in our life, और बहुत सारी ऐसी बातें जो एक फ्रेंड करते हैं आपस में. एक्चुअली सुबह का जो ये समय होता है, इसमें बच्चों के उठने में लगभग 1-1.5 घंटा रहता है. छुट्टियों में आई ऑलवेज़ ट्राई कि बच्चों को एक अच्छा स्लीप मिले, बिकॉज़ यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स होते हैं, तो बच्चों को जल्दी जगाना पड़ता है. सिर्फ छुट्टियाँ ही एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चों को एक प्रॉपर रेस्ट मिलता है. सो आई मेक श्योर दैट ड्यूरिंग हॉलीडेज शिवान्या गेट अ प्रॉपर स्लीप. Children who communicate more with their parents tend to have less behavioral issues. Therefore, holidays are the only time when we get lots of time to spend with our kids. Hence, I plan my holiday properly. Like I do meal planning, the game we will going to play, the movie we'll be watching, everything. Many people think that only the fancy activities that require a bigger sum of money can impact the happiness of the family. In fact, low-cost, home-based activity can do the same thing. We live in an age where technology and busy schedules disconnect us from small happiness of our lives. बच्चों का खुश होना, आपस में खेलना, ये कितना ज़रूरी है हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज़ का जो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, वो है मेरे बच्चों की पढ़ाई. जी हम मस्ती कितनी भी कर लें, खाना कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना, सोना, उठना, नहाना. अगर आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में पढ़ाई की ये अहमियत रखते हैं, तो मेरी बात मानिए, बच्चा कभी भी पढ़ाई को बर्डन नहीं लेता है. I always try to find out a little bit time from my busy schedule in order to do things which I truly enjoy. It can be reading a book, writing stories, watching TV, etc. Then the time comes when I start preparing the lunch, which the whole family loves. There are a lot of time when you don't want to go out. Rather, you want to spend your quality time with your family. A family meal is not always about what is being eaten, but rather that family members have time to eat together. Taking 30 minutes to eat together and talk together makes
meal time more than just about putting energy into the body. आफ्टर ईटिंग अ मील इट इज़ माई हैबिट, और आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आई क्लीन ऑल द किचन, से गुड बाय फॉर अ वाइल, क्योंकि शाम को फिर मुझे यहाँ वापस लौटना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेती हूँ मैं किचन से। यहाँ पर दिन भर में यही एक समय है जब मेरे बच्चे टीवी देखते हैं। जी हाँ, बच्चों की टीवी देखने के टाइम को भी लिमिट करके रखें। ये नहीं होना चाहिए कि छुट्टी हो गई है तो सुबह से शाम तक बच्चा सिर्फ टीवी देखे। तो ये जो आफ्टर लंच का जो टाइम है, ये शिवन्या की माया 1 से 1.5 घंटे के लिए अपना कुछ कार्टून या जो भी कुछ देखती हैं, और यहाँ पर हम इंजॉय करते हैं हमारा आफ्टर लंच हेल्दी ड्रिंक, जो कि होता है हमारा ग्रीन टी। तो ये एक नई चीज़ है जिसको हमने डिस्कवर किया है। इट इज़ वेरी गुड इन डाइजेशन। सो हम नॉर्मली आफ्टर हैविंग आवर मील, आफ्टर 30 मिनट्स having our meal, we take this detox drink which helps in digestion. So बस ये लेंगे और अपने रूम में जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे अपने टीवी में बिजी हैं, तो वहाँ पे आप कोई और काम कर नहीं सकते। सो आई टेक आउट लिटिल बिट ऑफ टाइम, और मेरी कुछ अपनी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बारे में कभी डिटेल में बातचीत करेंगे कि क्या चलता रहता है मेरा। तो यहाँ पे सौरभ रहते हैं और मैं, और सौरभ भी थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेते हैं, सो थोड़ा बातचीत करते हैं, और फिर मैं कुछ, मेरी पढ़ाई चल रही होती है तो वो करती हूँ, और बस उसके बाद टाइम आता है अपने आप को फिट रखने का। येस, कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली फिट is very important. In fact, during the holidays, it is more important than any other day of the year, because it gets you off the couch, boosts your energy, and the most important, it prevents weight gain. Evening aarti is very important for me. That's the reason, immediately after coming from the gym, I took bath and sit down and do all my prayers. ये एक ऐसा समय होता है जब शांति से मुझे कुछ समय मिलता है बैठ करके भगवान से कुछ अपने मन की बात करने का या फिर कुछ मैनिफेस्ट करने का। बस थोड़ी सी पूजा की, उसके बाद उठते हैं, शाम हो गई है, तो चाय इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सुबह और शाम की चाय जो है, देख सकते हैं आप, शाम यहाँ ढलने भी वाली है, तो हम बनाते हैं गर्मा गर्म चाय, बच्चों के लिए बनाते हैं दूध, और फिर हम लोग बैठ जाते हैं अपने चाय बिस्किट और दूध पीने के लिए। अच्छा, मेरी वीडियो में आपको ये चीज़ बड़ी कॉमन दिखेगी कि हम हमेशा खाते पीते ही रहते हैं, बिकॉज़ यही एक काम है मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम फैमिलीज़ करती हैं अपने हॉलीडेज़ पे, बशर्ते बाहर जाने के अलावा। बहुत से लोग हैं जिन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग उस माइंडसेट के लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते हैं। हम लोग इसी तरीके का फैमिली टाइम थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद शाम का समय जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ इस समय आई डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लव द मोस्ट इज़ टीचिंग। जी हाँ, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, और इस समय मेरे पास जो 2 स्टूडेंट हैं वो हैं दोनों मेरी बच्चियाँ। सो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद जो शाम का जो 2 घंटा होता है वो मेरी बच्चियों को पढ़ाने में जाता है। अमूमन इस समय पे शिवन्या जो होती है मैं उसको पढ़ाती हूँ, बट समटाइम शिवन्या इज़ हैविंग हर अबैकस क्लासेस, और यहाँ पर किमाया की पढ़ाई चल रही है आजकल ज़ोर शोर पे, क्योंकि ये आजकल की नई स्टूडेंट हैं जिन पे थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ता है। As soon as I finish teaching, I straight away start preparing the dinner. Yes, somewhere 7 o'clock I start preparing my dinner. Even in normal days also, we try to finish our dinner by 7:30 to 8. It helps in many ways. The first thing is it intact their equilibrium. जी हाँ, बच्चों को छुट्टी के कुछ दिनों के बाद वापस से उन्हें अपने एक नॉर्मल लाइफ में जाना होता है, तो वो अगर आप छुट्टियों के दिनों में उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर उनको वापस से उस टाइम रूटीन पे लाने में बड़ी दिक्कत होती है। और छुट्टियों में एक और फ़ायदा होता है, अभी हमारे बड़े सारे प्लान्स होते हैं
मूवीज़ को लेके और ये। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मील प्लानिंग करती हूँ, तो अगर मैं जल्दी डिनर ख़त्म कर देती हूँ बच्चों का, तो फिर मुझे काफ़ी टाइम मिलता है जिस समय में मैं नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाती हूँ। इनफैक्ट जब स्कूल डेज़ में यही मेरा एक रूटीन है, तो मैं इस रूटीन को हमेशा मेंटेन रखती हूँ। और आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग, क्लीनिंग ऑल द यूटेंसिल्स, आई ट्राई टू क्लीन द किचन वंस अगेन, बिकॉज बिफोर स्लीपिंग यू शुड क्लीन योर किचन। दैट विल हेल्प यू टू क्लीन योर माइंड एज वेल। जी हाँ, दिमाग भी इससे आपका काफ़ी बैलेंस रहता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं रात में ही कुछ बादाम और अखरोट इन्हें भिगा देती हूँ। ये एक अच्छा हैबिट है जो मैं और सौरभ सुबह हमेशा लेते हैं खाली पेट। और फिर पानी वगैरह गर्म करके, और जैसे कि आपको मालूम है आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच हम लोग अपना डिटॉक्स वाटर पीते हैं, वो पीते हैं। This is one habit which I'm trying to develop because I'm not very good in your skincare routine. So I'm not very good, but I'm trying from past 3 to 4 months that I should develop this kind of habit, that every night before sleeping I should clean myself, I should clean my face, because when you reach your late 30s all your skin problems started. So holiday एक बड़ा अच्छा टाइम होता है जब आप ये सारी हैबिट्स को डेवलप करें, बिकॉज नॉर्मल डेज़ में लाइफ की हासिल पसल में यू डोंट गेट दैट मच ऑफ टाइम। सो हॉलीडेज़ में मैं मेक श्योर करती हूँ कि यार ये एक काम जो है मैं ज़रूर कर लूँ। तो बस अपना हाथ वाथ और अपने फेस वगैरह को धोया, थोड़ा सा उसी समय मसाज कर लिया। और मसाजिंग मैं 2 समय करती हूँ, सुबह भी करती हूँ अपने एक्सरसाइज के समय। किसी दिन मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से आप अपने लेट 30s में अपने फेस का मसाज करें। सो ये सारा काम फिनिश करती हूँ, अपने हेयर को कॉम्ब करती हूँ। जी हाँ, नॉर्मली वी फॉरगेट टू डू दैट। हाँ, हमारे जिनके बड़े बाल होते हैं, हम लोग अमूमन सुबह एक बार कॉम्ब कर लिया तो फिर रात में हम ध्यान नहीं देते, बट ये एक काम सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए। फिर आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो आपके स्कल्प में अंदर बहुत अच्छे होते हैं। ये बात मुझे किसी पार्लर वाली दीदी ने बताया था कि आप सोने से पहले अपने बाल को अच्छे से कॉम्ब करें। So this is one thing I usually do. And then the time comes, it's like Shivanya's favorite time. Shivanya love playing games with with her family basically mama papa. So हमने बड़ी सारे गेम्स खरीदे हैं, like लूडो है, then we have थम्बोलाज and everything. So हम मेक श्योर करते हैं कि डेली हम ये गेम खेलें। तो एक गेम हम ज़रूर खेलते हैं, सांप सीढ़ी हो गया या लूडो हो गया या फिर थम्बोला हो गया। तो आजकल तो ये हमारा रिचुअल बन गया है कि डिनर में हम एक गेम ज़रूर खेलेंगे। सो ये खेलते हैं एंड उसके बाद मेरा फेवरेट टाइम आ जाता है जब हम मूवी देखना शुरू करते हैं। तो शिवन्या को ये मूवी मुझे दिखानी थी, 2 ये मूवी मैं बहुत पहले देख चुकी हूँ, बट शिवन्या को साइंटिस्ट का आजकल एक नया क्रेज़ चढ़ा है कि वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो ये मूवी मुझे बिल्कुल बेस्ट लगी, तो ये नीचे सारा अरेंजमेंट कर दिया, ये मूवी लगा दी और सोचा कि चलिए एक फैमिली टाइम एन्जॉय किया जाए। सो नाउ आई वॉन्ट टू वाइंड अप दिस ब्लॉग बाय सेइंग, हैविंग अ प्लेस टू गो इज़ अ होम, having someone to love is a family, having both is a blessing. So I hope कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने भी हॉलीडे को कुछ इसी तरीके से फैमिली टुगेदरनेस की तरह प्लान करिएगा। सो बाय, और फिर मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में।